اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ موسیٰ کی دعا کے ساتھ میں آج کے سیشن کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ زندگی کی ایک ایسے پہلو پہ آج بات کرنی ہے جو دنیا کی چکا چوند پہ کہیں کھو سک گیا ہے۔ آج بات ہوگی روحانیت پر اور اللہ کی محبت پر، جسے ہم ڈیوائن لو کہہ سکتے ہیں۔ تو میں آپ سب کی تعلیم کی گونج میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں سر شیخ محمد علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے رب کو کس طرح پہچانتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں، یہ ہمارا ریفلیکشن ہے۔ How? If God brings us to mind mostly fear and blame, impatience does not mean to passively ignore. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ برداشت کرتے رہیں۔ It means to be far-sighted enough to trust the end result of a process. جو mentor ہوتا ہے، جو گرو ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، وہ اپنا آپ کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایکچولی خواہش ہوتی ہے کہ جو نالج اس نے حاصل کی ہے اوور دی ایئرز، وہ ٹرانسفر کرے آپ کو۔ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادرز۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے تمہیں اپنا منفرد نائب بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جب آپ کنیکٹ ہو جائیں اللہ کی ذات سے، the entire universe stands behind you. No power on earth can move you. That is faith. یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو نواز دے، جس کو نہیں۔ سمن بولو فارمولا پر چلو، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو دماغوں کو ناٹوں کو ہم نے بند کر دیا، یہ تم سے رجوع نہیں کریں گے، یہ تمہاری طرف نہیں آئیں گے۔ یہ میرا مولا سب کی سنتا ہے اور کسی کسی کو چنتا ہے۔ یہ بہت پاورفل شعر ہے۔ انیشلی اس شہادت کی ایک انگلی رائٹ کی اٹھاتا تھا اور لیفٹ انگلی نیچے پوائنٹ کرتا تھا، گھومتا تھا۔ اس سے مراد یہ تھی کہ اللہ کی توحید بیان کرتا تھا اور وجد کی کیفیت میں آ کے گھومتا تھا، اور جو عرش سے لیتا تھا وہ دنیا والوں کو دیتا تھا۔ مقصد یہ تھا۔ آپ نے بات کی پیشنس کی اور صبر کی، تو کوئی انسان جو بہت زیادہ ایموشنل ہے، جذباتی ہے، اس کو آپ جو ٹپس دے دیں کہ اپنی لائف کے اندر صبر دیں۔ ان اللہ مع الصابرین، جس میں لکھا ہے قرآن شریف کا جملہ ہے، لو از رائٹ۔ تو عشق کرتے نہیں ہیں، عشق ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حقیقی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کے مزاجی کو نبھایا جائے، اور اس کے حقیقی کی جو انتہا ہے اس میں گمراہی سے کیسے بچا جائے۔ سورہ کہف میں بھی آتا ہے کہ وہی مرشد کا ہاتھ تھام لو، وہ آپ کو گمراہی سے بچائے گا۔ So on and so forth. Thank you very much for patiently listening. راز سمجھا ہے اس قدر، تیرا بندہ واصف بے خبر، تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تجھے جب پکارا بچشم تر، کئی مرحلے تجھے طے گئے۔ دا وانڈرنگ درویش سر شیخ محمد علی کا تہ دل سے مشہور ہیں کہ انہوں نے اس کردار For you to get good grades, that's simple as that. Definition ہوگی ایک مینٹور کی، ایک ٹیچر، ایک ٹیچر، مرشد کا یہی کام ہوتا ہے۔ That's it. As simple. ٹھیورن کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ کیا پتہ ہے آپ لوگ؟ شراب خانے کو کہتے ہیں۔ گندی باتیں تو نہیں نا پتا ہمیں، پتہ چل گیا نا۔
ट्रू लवर ऑफ गॉड, जो अल्लाह का लवर है, वो अगर शराब खाने में भी जाएगा उसका दीन खराब नहीं होगा। ये कहना चाह रहे हैं हमारा। When a true lover of God goes into a tavern, the tavern becomes his chamber. Go and check out these places. So having said that, कि एक अल्लाह से सही मोहब्बत करने वाला शख्स अगर शराब खाने भी जाता है तो वो शराब खाना उसके लिए इबादत की जगह हो जाती है, right? But when wine giver यानी शराब पीने वाला सेम चेंबर में जाएगा तो it becomes his temple. उसको वहाँ सिर्फ शराब ही नजर आएगी। और जैसे शायद लास्ट टाइम मैंने अपनी कोट किया था, मैंने किया था, अभी कर देता हूँ कि मौलाना रूम के पास जब आए शख्स तबरीज़, तो शख्स ये सोच के आए थे कि मैं इस शख्स को अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करूँगा, डेटा ट्रांसफ़र करूँगा, डाउनलोड करूँगा। बट उन्होंने देखा कि वो टिपिकल मौलवी की तरह बैठे हैं और तबलीग कर रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं, दीन की शरफ की बातें कर रहे हैं। इन्होंने पढ़ी बाइबल की किताब रूमी एंड आय रूमी एंड आय करके किताब है, उसमें ये किस्सा बयान किया गया, हिस्टोरिकल फैक्ट। तो वो देखते हैं, उन्होंने कहा कि ये बंदा, इसको मैं अपनी नॉलेज दूँ, ये तो इस काबिल भी नहीं है। बट स्टिल उन दूर से आए थे, तबरीज़ से आए थे, और दुनिया में थे, तो बैठे उनके हल्के सुना उनकी बातों को। और लोगों ने उनकी जो नमाज बैठे होते उनके बुलंदैन, उन्होंने सब एतराज़ किया कि ये शख्स कौन है, मखजूद सा लग रहा है, अजीब से कपड़े पहने हुए, बालों में इसकी गर्द है, तो डज़ ही बिलोंग हियर। तो मौलाना रूम तक बात पहुँची, उन्होंने यहाँ बढ़ते शख्स की तरफ देखा और उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए और ये बातें आपको समझ नहीं आएंगी। तो चुप करके बैठे रहे और फिर कुछ देर बोलने के बाद ये उनके करीब गए, उन्होंने कहा कि ये जो आप जिस किताब से पढ़ रहे हैं ये क्या है। तो इसे भी मेरे वालिद की किताब है और मैं इससे पढ़ रहा हूँ, ये मेरा सारा नॉलेज बेस करता है इस बुक पे। तो कहते हैं वो किताब उठाई, एक फाउंटेन सा था, एक पूल था, उसमें उन्होंने किताब फेंक दी। तो सारी रोशनाई जो थी वो ज़ाया हो गई। किताब पे जो लिखा था वो 2 मिनट में बह गया उस पानी में। तो बहुत परेशान हुए इनके मुरीदैन भी और ये खुद रूमी भी, ये क्या गज़ब कर दिया मेरे बाप की सारी नॉलेज। Check out these places. So having said that, कि एक अल्लाह से सही मोहब्बत करने वाला शख्स अगर शराब खाने भी जाता है तो वो शराब खाना उसके लिए इबादत की जगह हो जाती है, right? But when wine giver यानी शराब पीने वाला सेम चेंबर में जाएगा तो it becomes his temple. उसको वहाँ सिर्फ शराब ही नजर आएगी। और जैसे शायद लास्ट टाइम मैंने अपनी कोट किया था, मैंने किया था, अभी कर देता हूँ कि मौलाना रूम के पास जब आए शख्स तबरीज़, तो शख्स ये सोच के आए थे कि मैं इस शख्स को अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करूँगा, डेटा ट्रांसफ़र करूँगा, डाउनलोड करूँगा। बट उन्होंने देखा कि वो टिपिकल मौलवी की तरह बैठे हैं और तबलीग कर रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं, दीन की शरफ की बातें कर रहे हैं। तो इन्होंने पढ़ी बाइबल की किताब रूमी एंड आय रूमी एंड आय करके किताब है, उसमें ये किस्सा बयान किया गया, हिस्टोरिकल फैक्ट। तो वो देखते हैं, उन्होंने कहा कि ये बंदा, इसको मैं अपनी नॉलेज दूँ, ये तो इस काबिल भी नहीं है। बट स्टिल उन दूर से आए थे, तबरीज़ से आए थे, और दुनिया में थे, तो बैठे उनके हल्के सुना उनकी बातों को। और लोगों ने उनकी जो नमाज बैठे हैं उनके बुलंदैन, उन्होंने सब एतराज़ किया कि ये शख्स कौन है, मखजूद सा लग रहा है, अजीब से कपड़े पहने हुए, बालों में इसकी गर्द है, तो डज़ ही बिलोंग हियर। तो मौलाना रूम तक बात पहुँची, उन्होंने यहाँ भर के शख्स की तरफ देखा और उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए और ये बातें आपको समझ नहीं आएंगी। तो चुप करके बैठे रहे और फिर कुछ देर बोलने के बाद ये उनके करीब गए, उन्होंने कहा कि ये जो आप जिस किताब से पढ़ रहे हैं ये क्या है। तो इसे भी मेरे वालिद की किताब है और मैं इससे पढ़ रहा हूँ, ये मेरा सारा नॉलेज बेस करता है इस बुक पे। तो कहते हैं वो किताब उठाई, एक फाउंटेन सा था, एक पूल था, उसमें उन्होंने किताब फेंक दी। तो सारी रोशनाई जो थी वो ज़ाया हो गई। किताब पे जो लिखा था वो 2 मिनट में बह गया उस पानी में। तो बहुत परेशान हुए इनके मुरीदैन भी और ये खुद रूमी भी, ये क्या गज़ब कर दिया मेरे बाप की सारी नॉलेज। वो आप देख सकते हैं वहाँ जाके, पहले 20 रूम्स हैं। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 21 को देखते हैं। When a true lover of God
goes into a tavern. Am I audible? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? कैसा टीचर नहीं मिलता था। मैं सवाल कुरान शरीफ से पूछता था, पर अगर मैं कुरान शरीफ कहीं लेकर है, तो अगर फरमाता है कुरान में तुम मेरी तरफ आओ, एक बार तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊँगा। तो दूसरा कोई नहीं समझ में आता, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुरान जब आप खोलते हो और तर्जुमा पढ़ते हो, तफसीर पढ़ते हो, तो क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है और इससे देखा जाता है एग्जाम्पल मैं आपको भी दिखाता हूँ। I'm here again. Outright reject करते हैं कि सॉफ्टवेयर नहीं मानते, इसलिए कि ये अपनी नॉलेज को स्वीकार नहीं करते। जब आपको पता नहीं है और आप समझते हैं आप अपने खुद हैं और किसी मसले पे बैठ गए हैं, किसी पोजीशन पे हैं, then you don't have a belief in the subject, so you outright reject that philosophy. और जैसे कि मैंने पहले कहा, पूछेंगे यूनिवर्सिटी कैसे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ एक शेर, मतलब मैं एक सिंगर हूँ, लिरिक्स राइटर हूँ, लिखता हूँ, कुछ कंपोज करता हूँ, लेकिन मतलब गाने, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक शेर लिखा है और वो मैंने कभी किसी को नहीं सुनाया, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ सर आपके लिए हूँ, क्योंकि आपकी दो रेफरेंस हैं। तो किया इश्क भी, किया प्यार भी, किया खुद को खुद मुख्तार भी, किया इश्क भी, किया प्यार भी, किया खुद को खुद मुख्तार भी, पिया जाम भी, उसका नाम भी, लिया खुद पर एक इल्जाम भी। ये प्यार है या इश्क से बढ़कर जुनून, कहने वालों ने कहा ये जिस्म की हवस का सुरूर, मैं कहता हूँ ना ये हवस है ना सुरूर है, ये तोहफा रब का नूर है, जो मिला मुझे मेरे रब से है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। हमें ज्वाइन करने का